Hi everyone, I'm Ravi and I'm back with the another question of chapter number 2, Structure of Atom, class 11 NCERT text. In this video, I'll be discussing question number 51 and it's on page number 68. So first of all, let's have a look on the question and then to its solution. Question is, the work function for cesium atom is 1.09 electron volt. Fine. Calculate number 1, the threshold wavelength. Number 2, the threshold frequency of the radiation. Fine. If the cesium element is irradiated with a wavelength of 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectrons. Fine. So first of all, we'll be calculating the threshold frequency and then threshold wavelength. Okay? So let's begin with the solution now. ठीक है, सो वर्क फंक्शन में क्या दिया गया है? वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे W नॉट से, विच इज इक्वल टू H म्यू नॉट. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट द B पार्ट, which is the threshold frequency. The threshold frequency, उस threshold frequency को how we will representing? We will representing by mu naught, and threshold frequency mu naught will become is equals to W naught, that is work function, upon with Planck's constant. ठीक है, H is the Planck's constant. So substituting these values, substituting the values of work function which is 1.09 electron volt and Planck's constant की value तो आपको पता ही है 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules second. ठीक है, तो एक चीज और याद रखिएगा कि मैं एक बार यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 1 electron volt is equals to 1.602 into 10 raised to power minus 19 joule. तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने ये चीज क्यों लिखी है. I will be converting my 1.09 electron volt which is work function into joules. तो 1.09 electron volt मेरा work function है, इसको मेरे को अगर चेंज करना है joules में, तो what I will be doing, 1.09 which is my work function given, I will now convert into joules. So 1.09 into 1.602 into 10 raised to power minus 19 joules. So electron volt is converted into joules. And what is Planck's constant? It is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules second. So what will be the answer of threshold frequency? Answer will be 4.59 into 10 raised to power 14. Frequency की unit क्या होती है? It is second inverse. Fine. So 4.59 into 10 raised to power 14 second inverse. Now coming to now the A part. Threshold wavelength. So the threshold wavelength, तो threshold wavelength को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? lambda नॉट से. ठीक है, which is equals to C upon में mu naught. ठीक है, C is the velocity of radiation, mu naught is the frequency, it is the threshold frequency. So threshold wavelength is equals to velocity of the radiation divided by में threshold frequency, जो बनता है 3 into 10 raised to power 8 meters per second divided by mu naught की क्या वैल्यू होगी? It was 4.59 into 10 raised to power 14 second inverse. ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमें आंसर मिलेगा 6.54 into 10 raised to power minus 7 meters. इसको और फर्दर ऑन करते हैं तो इट विल बिकम 654 into 10 raised to power minus 9 meters. अब आपको एक बात बता दूं कि जो 1 नैनोमीटर, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रही हूँ कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 raised to power minus 9 meters. तो जो मेरा 654 and 10 raised to minus 9 मीटर है वो क्या हो जाएगा? 654 नैनोमीटर, क्योंकि 10 raised to power minus 9 मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. ठीक है, नैनोमीटर है. फाइन. तो ये दो पार्ट्स, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो कैलकुलेशंस थी, किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द वर्क फंक्शन. आई होप यू ऑल हैव गॉट ऑल दीस पॉइंट्स. द वर्क फंक्शन इज
a kind of energy also. So energy क्या होती है, h mu होती है. So work function, that means work जो होगा it will also be equals to h mu. Therefore I have written over here w naught, which is the work function, is equals to h mu naught. h is the Planck's constant and mu naught is the threshold frequency. ठीक है, तो I have calculated out the threshold frequency, which is 4.59 into 10 raised to power 14 second inverse, and threshold wavelength, which is equals to 654 nanometer. Now please, I just request you all to note down these points, pen down the things which I have written on the board to your notebook itself. I'll be calculating now the kinetic energy and velocity of the ejected photoelectrons. So please kindly write all these points in your notebook. I'm rubbing on them. ठीक है, सो अब हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी अकॉर्डिंग टू द question wavelength used in irradiation is equals to 500 नैनोमीटर. ठीक है, वेवलेंथ यूज इन रेडिएशन क्या है, 500 नैनोमीटर है. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल्स टू h विद इन ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू नॉट. क्या फर्दर सॉल्व करते हैं तो h c आ जाएगा बाहर, क्योंकि म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा होता है. तो सी को मैंने कॉमन ले लिया है, 1 में लेमडा माइनस 1 में लेमडा नॉट. ठीक है, देखिए अगर मैं सी को बाहर नहीं लेती और मैं म्यू की जगह म्यू जो है, म्यू क्या होता है सी बाय लेमडा, तो सी यहाँ लिखती और सी यहाँ लिखती. ठीक है, अब मैं अगर इसको सी को बाहर लेती हूँ, इट बिकम एच सी विद इन ब्रैकेट 1 में लेमडा माइनस 1 में लेमडा नॉट. ये बन गया आपका. इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको एच सी विद इन ब्रैकेट लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू लेमडा नॉट. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ h which is Planck's constant, c which is velocity of radiation, lambda naught क्या है, it is the threshold wavelength जो हमने कैलकुलेट किया था 654 नैनोमीटर. and what is the lambda? It is the lambda which is the wavelength used in irradiation, which is 500 nanometer. Substituting all these values in the kinetic energy expression, तो हमें क्या मिलता है, kinetic energy is equals to h की वैल्यू क्या है, 6.626 into 10 raised to power minus 34. c की वैल्यू क्या है, into 3 into 10 raised to power 8 meters per second, और ये था joules second. विद इन ब्रैकेट करते हैं. लैम्डा नॉट क्या था हमारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 654 नैनोमीटर. तो 654 नैनोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे यहाँ पर, तो इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ, क्योंकि देखिए ये भी नैनोमीटर है और 654 भी नैनोमीटर है. तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, इनटू 10 रेज़्ड टू पावर -9. सिंस दीज बोथ आर इन अ फॉर्म ऑफ सब्सट्रैक्शन वैल्यू, तो 10 रेज़्ड टू पावर -9 को हम कॉमन ले लेंगे. ये सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो कॉमन निकल जाएगा. 654 अगर आपको और सिंप्लीफाई तरीके में चाहिए तो मैं लिख देती हूँ, 654 into 10 raised to -9 मीटर माइनस 500 into 10 raised to power -9 मीटर. ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पर. अपॉन में लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, लैम्डा की वैल्यू क्या है 654, नहीं लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या 654 इंटू 500 और 10 raised to power -9 and 10 raised to power -9 दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या बन जाएगा इंटू 10 raised to power -18 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू मीटर है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, आगे फर्दर देखते हैं. 6.626 इंटू 10 raised to power -34 इंटू 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर्स
पर सेकेंड और ये था जूल सेकेंड। तो इसमें से 9 10⁻⁹ कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁹ कॉमन हो गया, देन 654 माइनस 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 654 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻18, ये मीटर स्क्वायर था और वो मीटर था। तो इस होल कैलकुलेशन को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे और इनकी यूनिट से यूनिट को काटेंगे वाटेंगे जो भी कुछ करेंगे, इसको जब आप पूरा को होल को कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का 9.314 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी, therefore kinetic energy of the ejected photoelectron is equals to 9.314 into 10⁻⁻20 joules. This was the kinetic energy of the ejected photoelectron. आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्या कैलकुलेशंस हुई हैं। फाइन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को याद रखिएगा, इट इज 9.314 × 10⁻20 जूल्स। याद सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए कि ये आगे हमें सॉल्व करना है। वी नीड टू टेक द काइनेटिक एनर्जी फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आई एम रबिंग दिस ऑल एंड नाउ प्लीज पेन डाउन, ठीक है। आपने पेन डाउन तो कर ही लिया होगा, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ ejected photoelectron, since kinetic energy is equals to half mv square, ठीक है, which is equals to 9.314 into 10⁻⁻20 joules। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ mv स्क्वायर। m is the mass of the photoelectron and v is the velocity of the ejected photoelectron, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v will be equal to 2 into 9.314 into 10⁻⁻20 joules, ठीक है, डिवाइडेड बाय में m और इसका होल का अंडर रूट आ जाएगा, बिकॉज मतलब देखिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.314 जूल्स, ये जूल्स यहाँ पर है, ठीक है, और डिवाइड बाय करूंगी m और अंडर रूट कर दूंगी पूरे को। तो इनकी वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होती है वो पता चल जाएगी आपको, 2 into 9.314 into 10⁻⁻20 जूल। m की वैल्यू क्या है, मास 9.31 into 10⁻⁻9.11 9.11 kg। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे ना, इस फुल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वेलोसिटी का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4.52 into 10⁵ meters per second, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द, हाँ एक और चीज 1 जूल, अब आप समझ गए होंगे मीटर पर सेकेंड मैम आया कहां से, तो मैं आपको बता दूं 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 होता है, ठीक है। तो जूल केजी से केजी कट जाएगा, मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 बच जाएगा अंदर। तो जब वो मीटर स्क्वायर, देखिए जब इस जूल की जगह मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ, इस जूल्स की जगह मैं एक बार ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रही हूँ कोई भी, मैं सिर्फ और यूनिट कन्वर्जन दिखा रही हूँ आपको। जूल की जगह अगर मैं केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 करके डिवाइड बाय में केजी था, इस केजी से केजी कट जाएगा। अब अंडर रूट किसका हुआ, मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 का, जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, मीटर सेकेंड इनवर्स, तो वही आई है ना। तो आंसर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन का, मैं यहाँ देती हूँ, देयरफॉर
velocity of ejected photo electron is equals to 4.52 into 10 raised to power 5 meters per second. Okay, this is the velocity of ejected photoelectron. I hope the calculation regarding the wavelength, frequency, kinetic energy and velocity of ejected photoelectrons have been clear to you. लेकिन फिर भी if anybody is having any doubt regarding the solution which I have written on the board, then please do ask your doubts in the space given below. Well, this brings me to the end of the session and it's me Ravi signing off for now. Take care and goodbye.